Hello student, good evening one and all. Welcome back to physics class. Okay, 11. Chapter number 4, laws of motion and lecture number 3. आज का लेक्चर नंबर कितना है? 3 है, right? तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा we have discussed about the inertial and non-inertial frame of reference. Before that we have discussed the importance of all three Newton's laws of motion, and we also solved one numerical, right? And now today we are going to solve the numerical which is given as assignment in the textbook में जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल है वो हम सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद और एक न्यूमेरिकल लेंगे देन वी विल हैव द थ्योरी पार्ट ऑफ द रिमेनिंग टॉपिक. तो जब भी मैं क्लास लेता हूँ, मान लो आज का तीसरा लेक्चर है, राइट? तो फर्स्ट 2 लेक्चर आपको देखना जरूरी है, वो भी थरोली प्रॉपरली, so that you can able to understand the next lecture. Got it? So please, I hope you all follow my instruction properly, right? So look at the page number 75 76, question number 3 का पहला न्यूमेरिकल है. आपके पास पीडीएफ फाइल होगा या टेक्स्ट बुक आपने खरीदा होगा तो जल्दी से खरीद लो. टेक्स्ट बुक बाजार में मार्केट में अवेलेबल है, जो स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक है. अगर टेक्स्ट बुक सामने आप रखोगे तो यू विल फाइंड इजी टू अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल. तो न्यूमेरिकल देखो यहाँ पे, ट्रक ऑफ मास 5 टन, truck of mass 5 ton is traveling on a horizontal road with 36 km per hour, stops on traveling 1 km after its engine fails suddenly. What fraction of its weight is the fractional force exerted by the road? Okay, what fraction of its weight is the frictional force exerted by the road? What will be fraction if this happens with a car of mass 1 ton? That is a car moving with the same speed stops in the same distance. Okay, तो सबसे पहले हमारा फिजिक्स में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो क्या है, डेटा जो भी गिवन है वो प्रॉपरली लिख लेते हैं विद द प्रॉपर यूनिट्स. ओके, सो गिवन डेटा यहाँ पे सॉल्यूशन में आएगा, सॉल्यूशन दैट इज गिवन डेटा. सो लेट्स सी वन बाय वन. A truck of mass of truck, mass of truck that is small m, which is equal to 5 ton. यहाँ पे एक टन मतलब 1000 kg, एक टन मतलब 1000 kg. तो this will be in SI system 5000 kg. This is very important to convert the unit in SI system if the quantities, physical quantities are not given in the proper SI unit, right? If it is given in CGS unit or any other convenient units, so you need to convert first into the SI system. Usually we are solving all numerical in physics in the SI system only. Is that clear? Okay. Horizontal road with the traveling 36 km per hour. So horizontal velocity, right? So initial velocity of a truck, that will be initial velocity. We can say initial velocity of truck, which is 36 km per hour. Student, here also the speed is given in kilometer per hour, and we know that how to convert this kilometer per hour into meter per second just by multiplying by the factor 5 upon 18. So we will multiply this 36 multiplied by 5 upon 18. Okay, so this will be 18 1 the 18, 18 to the 36, so it is 10 meter per second. यूजुअली ये हम याद भी कर सकते हैं, जैसे 36 है, 72 है तो 20 मीटर पर सेकेंड, 36 है तो 10 मीटर पर सेकेंड, राइट? और 90 है तो 25 मीटर पर सेकेंड. सो इन दिस वे वी कैन रिमेंबर ऑल दिस क्वांटिटी ऑफ द कन्वर्जन. स्टॉप्स ऑन ट्रैवलिंग 1 किलोमीटर आफ्टर, तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रक, डिस्टेंस ट्रैवल by the truck, distance traveled by the truck 1 kilometer
Here also the distance given in kilometer, no, you have to convert into meter, so it will be 1000 meter. See, lot of conversion in this numerical. Its engine failed suddenly, मतलब क्या हुआ, गाड़ी वो ट्रक रुक गया होगा, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या आएगी, जीरो आएगी. फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रक v इक्वल टू जीरो. रुक गया ना, इंजन बंद पड़ गया है, मतलब रुक गया गाड़ी. नाउ व्हाट दे आस्क, व्हाट फ्रैक्शन मतलब यहाँ पे रेशियो आएगा. व्हाट फ्रैक्शन मतलब व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वेट मतलब mg, वेट मतलब mg is the frictional force, right? Frictional force exerted by the road. Okay, तो यहाँ पे g जो लेना पड़ेगा यहाँ पे, then g will be 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एज्यूम कर लेते हैं 9.8% कैलकुलेशन में गड़बड़ होगा. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास काइनेमेटिकल थर्ड इक्वेशन है, राइट? तो थर्ड इक्वेशन क्या है, फ्रॉम काइनेमेटिकल third equation of motion. What is that third kinematic equation which is used to calculate the final velocity, initial velocity, or displacement or acceleration, but time factor not given. Understand? Third equation में time factor नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, v square minus u square which is equal to 2 times as. Right? यहाँ पे हमको displacement दिया है, okay? इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी दी है, बट ये एक्सेलरेशन टू बी कैलकुलेटेड. यहाँ पे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है. तो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 times s. सो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर. सो 0 का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी कितनी, इनिशियल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 times into 1000. Okay, just solve this. After solving, you will be getting minus 100 upon 2000. Minus 100 upon 2000. So 20 will get cancel. ठीक से cancel करो. यहाँ पे कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -1 upon 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कई बार बच्चे यहाँ पे डर जाते हैं माइनस साइन देख के. अरे बाबा, डोंट स्केयर अबाउट दिस नेगेटिव साइन. यहाँ पे इंजन फेल हो गया है ट्रक का, तो ट्रक रुक गया है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रिटार्डिंग फोर्स लगाई. द रिटार्डिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन ऑफ अ कार. तो यहाँ पे रिटार्डेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन रहेगा. दैट्स व्हाई वी गॉट द नेगेटिव वैल्यू. अगर नेगेटिव वैल्यू आया मतलब इट्स अ करेक्ट. अगर गलती से आपका पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो इट इज रॉन्ग. ओके, कीप इन माइंड. तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखना बहुत जरूरी. उसके बाद यहाँ पे हमको एक्सेलरेशन मिल गया. देन फ्रिक्शनल फोर्स exerted by the road, okay, on the tire of the truck. फ्रिक्शनल फोर्स. लेकिन ये फ्रिक्शनल फोर्स हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, राइट? तो जो भी उसका एक्सेलरेशन हो रहा है, जो भी मूविंग मोशन में जो भी उसका फोर्स लगा है, जो भी व्हाट आर द फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन ऑफ अ ट्रक, राइट, दैट फोर्स विल बी सेम एज दैट ऑफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स. क्योंकि ट्रक जो है यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है, राइट? सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ट्रैवलिंग जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे जो फोर्स होगा दैट यू हैव टू कैलकुलेट. तो देखो बच्चे, यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है, दैट फ्रिक्शनल फोर्स विल बी MA, राइट? मॉड में लेना पड़ेगा क्योंकि वो नेगेटिव फोर्स है, राइट? फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव में आएगा. और जो सी मान लो यहाँ पे ये ट्रक है, ओके, इसके टायर्स है, तो ट्रक ऐसे जा रही है, आगे जा रही है, राइट? तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी द अपोजिट टू दिस. इसका अपोजिट रहेगा, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है. जैसे फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगा, तो नेगेटिव रहेगा, इसलिए मॉड लेना पड़ेगा उसका. अपॉन इट्स वेट ऑफ द ट्रक, तो ये आएगा mg. तो यू हैव टू फाइंड दिस रेशियो. तो यहाँ पे मास कट हो जाएगा, राइट? तो सिंपली a अपॉन g. तो a कितना है, a विल बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन, ओके, एक्सेलरेशन हमने निकाला है -1 अपॉन 20
डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ जी कितना है 10 10, यहाँ पे 10 आएगा, सो दिस इज यहाँ पे मॉड में आएगा ये, सो दिस विल बी 1/200। यहाँ पे 0 0 नहीं कट होगा, रिमेंबर ये 10 इसको मल्टीप्लाइड होगा, यहाँ पे इसीलिए मिस्टेक कर डालते बच्चे, वो क्या कर डालते उसको, राइट, तो ये 10 को ऊपर ले लेते, ऊपर नहीं आएगा क्योंकि दिस इज ऑल्सो 10/1, तो ये क्या है 10/1 आएगा, राइट, तो 10/1 मतलब ये क्या आएगा, दिस विल बी 1/20 into 1/10 which is 1/200, राइट। तो यहाँ पे दोनों एक्सेलरेशन है A/G है, तो यहाँ पे रेशियो में कोई यूनिट नहीं होगा, द रेशियो विल बी 1:200, ओके। तो 10 को ऊपर मत लो, तो 10/20, राइट, तो 10/10 to 1/2 1:2, no, it is not answer, that will be wrong, so the answer will be 1/200, okay। If you have any doubt, so take a screenshot for this. Okay, now let's have the second numerical. The second numerical is I have to write this first. इसमें हमारा सीक्वेंस में थर्ड न्यूमेरिकल है, गार्डनर वाटर अ लॉन, गार्डनर्स वाटर अ लॉन, जो गार्डनर होता है वो लॉन को पानी दे रहा है, राइट, गार्डनर वाटर अ लॉन, द होज इजेक्ट्स द गार्डनर waters a lawn, वो पाइप जैसा ना, उस पाइप पानी देने वाला पाइप, वो पाइप से वो गार्डनिंग कर रहा है, द होज इजेक्ट्स दी होज, होज का मतलब जो पाइप का आगे वाला जो होता है ना, माउथ होता है, उसको होज बोलते हैं, द होज इजेक्ट्स 4 into 10⁻⁴ meter cube of water per second, per second. The area of the mouth of the hose is 2 centimeter square, एरिया दिया है, right? Find the backward force, find the backward force exerted on the gardener and उसके हाथ, तो वो हाथ में पकड़ेगा वैसा, ओके, तो गार्डनर के हैंड में वो कितना बैकवर्ड फोर्स लगेगा। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। सो ये 3 मार्क के लिए न्यूमेरिकल आ सकता है, तो फटाक से इसको सॉल्व कर दें। अभी देखो यहाँ पे गार्डनर वाटर लॉन, द होज इजेक्ट्स 4 into 10⁻⁷ मीटर, दिस इज वॉल्यूम, ये क्या दिया है वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकेंड, मतलब dV/dt दिया यहाँ पे, पर सेकेंड है ना, टाइमिंग दिया है, तो 1 सेकंड में इतना पानी वो इजेक्ट होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस टर्म विल बी द dV/dt एंड ये होगा एरिया ऑफ होज, राइट। लेकिन ये जो एरिया है, दिस एरिया इज गिवन इन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट टू मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये मीटर क्यूब दिया है। तो ये छोटी छोटी चीजें कन्वर्जन देखना बहुत जरूरी है। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, प्लीज सी ऑल द फिजिकल क्वांटिटी whether they are given in CGS or SI unit. So you need to convert all the physical quantity in the same system of units. एक ही सिस्टम में उसको कन्वर्ट करो, चाहे आपको अगर CGS में इंटरेस्ट है तो CGS में कन्वर्ट करो, अगर SI में इंटरेस्ट तो SI में कन्वर्ट करो, लेकिन एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में चाहिए। Then find a backward force, okay, जो backward force, क्योंकि यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन अप्लाई होगा, न्यूटन थर्ड लॉ विल बी एप्लीकेबल हियर, राइट। तो जितना पानी बाहर जाएगा फोर्स से, उतना पानी वो जो भी फोर्स है वो हाथ पे लगेगा, देन इट विल बी रिमेन हॉरिजॉन्टल, तभी वो पाइप क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, नहीं तो बेंड हो जाएगा वो, राइट। आप देखो, ट्राई करके देखो, कभी कार वॉश करते घर पे, तो जब भी कार को वॉश करते तो तब वो पाइप जो है हाथ में पकड़ के रखो एंड जस्ट सी प्रैक्टिकली
सी स्टूडेंट, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है आपको प्रैक्टिकली देखना है, रट्टा नहीं मारना है, डोंट बी रट्टोफाइड, अप्लाई दिस फिजिक्स इन द डेली लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ में आपको यूज करना है। इज दैट क्लियर? ओके, सो लेट्स राइट द गिवन डेटा। यहाँ पे जो भी दिया है पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन डेटा, लेट मी चेंज द मार्कर। यहाँ पे गिवन डेटा यूज करना, यहाँ पे तो एरिया दिया है ए इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ दिस कैन बी रिटन इन मीटर स्क्वायर, 2 into 10 raised to right -4 मीटर स्क्वायर, 2 into 10 raised to -4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 10 raised to -2 मीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए 10 raised to -4 मीटर स्क्वायर आएगा। देन द amount of water, the volume of water ejected per second, volume of water ejected per second, so it is dV by dt which is equal to 4 into 10 raised to -4 okay मीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ पे उन्होंने वर्ड भी दिया है पर सेकेंड, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। देन डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमने सब इसको एसआई में कन्वर्ट कर लिया है, राइट। सो अभी इसका फॉर्मूला देखते हैं। वाटर फ्लोज आउट, राइट, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इजेक्टेड पर यूनिट टाइम, सो दैट विल बी dV by dt विच इज इक्वल टू, यहाँ पे वॉल्यूम पर सेकेंड इसको कैसे डिफाइन करोगे, एरिया इंटू dx by dt, dx by डिस्टेंस, dx by डिस्टेंस, ओके। तो पर यूनिट डिस्टेंस आएगा यहाँ पे, सिर्फ वॉल्यूम रहा तो एरिया इंटू डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे dt तो इसलिए यहाँ पे भी dt आएगा, राइट। नहीं तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं सिर्फ एरिया इंटू dx, वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड बाय टाइम का फंक्शन दिया है। तो dv by dt मतलब यहाँ पे वॉल्यूम है, दिस इज नॉट वेलोसिटी, दिस इज वॉल्यूम v, ओके। यहाँ पे वेलोसिटी और वॉल्यूम में कंफ्यूज मत करो। तो यहाँ पे dv by dt इज इक्वल टू एरिया इंटू dx by dt, बट स्टूडेंट dx by dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो दैट विल बी वेलोसिटी। तो यहाँ पे आएगा एरिया इंटू स्मॉल v, सो यहाँ पे here small v is the velocity of water, velocity of water, and ये क्या है, capital A is the area of hose, area of hose, okay, this is what. Then v is equal to, अभी यहाँ पे let's make the formula for velocity, velocity of water ejected, which is equal to क्या आएगा, dv अपॉन dt इंटू 1 अपॉन एरिया, 1 अपॉन एरिया। तो एरिया दिया है यहाँ पे dv by dt दिया है, तो 4 इंटू 10 raised to -4 डिवाइड बाय एरिया कितना है 2 इंटू 10 raised to -4। तो बच्चों यहाँ पे ये -4 कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो द वेलोसिटी विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। ये कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी यहाँ पे, ओके, तभी तो वो हॉरिजॉन्टल रहेगा, अगर वो वेरी होगा तो वो नीचे ऊपर हो जाएगा, राइट। तो आपको यहाँ पे हमको एज्यूम क्या करना है, द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोज आउट विल बी द 2 मीटर पर सेकेंड, ओके। देन अभी निकालना है हमको सिंस मास, राइट, सिंस मास इज इक्वल टू, सिंस पूछा क्या यहाँ पे फोर्स निकालना है ना, फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा mg, राइट, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे मास निकालना पड़ेगा। सिंस मास ऑफ वाटर will be, mass of water ejected out will be the volume into density, volume into density, okay। तो यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, the volume will be, so mass of water flow per unit time, dm by dt, mass of water flow per unit time, per unit second or per unit time, right। So it can be written as dm by dt, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, dm by dt इज इक्वल टू dv by dt इंटू द डेंसिटी रो, राइट। सो dv by dt कितना है 4 इंटू 10 raised to -4 इंटू डेंसिटी इज 10 raised to 3 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 10 raised to -1 विच इज 0.4, ओके। तो यहाँ पे 0.4 क्या आएगा, दैट विल बी द dm by dt, ओके। सो व्हाट इज द यूनिट फॉर दिस, 0.4 kg per second
kg per second. kg नहीं आएगा क्योंकि listen it is the water per unit टाइम दिया है, तो जब भी यहाँ पे जो यूनिट है वही यूनिट यहाँ पे आएगा. किलोग्राम किसका यूनिट है? डीएम का. और सेकंड किसका यूनिट है? डीटी का. डीटी क्या है? टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. नाउ द हिज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ change of momentum, rate of change of momentum, rate of change of momentum will be momentum of water, momentum of water will be. So यहाँ पे rate of change जो न्यूटन सेकंड लॉ हमारा वो क्या बोलता है? dp by dt, dp by dt. Okay, so this can be written as, यहाँ पे क्या आएगा? d by dt, d by dt. Momentum is mass into velocity. राइट, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास इज वेरिंग. सी हमेशा जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो कब एप्लीकेबल होगा? अगर मान लो इफ द मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट तब F इज इक्वल टू ma एप्लीकेबल होता है. लेकिन हम लोग कॉमनली उसको यूज करते हैं F इज इक्वल टू मा m इंटू a. लेकिन वो कब पॉसिबल होगा? इफ द मास ऑफ द मूविंग बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, राइट. बट यहाँ पे मास ऑफ द वाटर गोज ऑन चेंजिंग, यहाँ पे मास चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, राइट. तो इसको कैसे हम लिखेंगे? dm by dt मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, राइट. तो dm by dt हमने निकाला है, dm by dt 0.4 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी कितनी? 2, सो इट इज 0.8, राइट, किलोग्राम मीटर. और यहाँ पे फोर्स है ना, सी dp by dt will be 0.8, dp by dt will be 0.8, but f is equal to dp by dt. यहाँ पे हमको बैकवर्ड फोर्स निकालना है, बैकवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन द गार्डनर्स हैंड, राइट. तो बैकवर्ड फोर्स क्या होगा? f, दैट विल बी f. लेकिन बाय न्यूटन सेकंड लॉ f क्या डिफाइन करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स और इम्प्रेस फोर्स, दैट इज द न्यूटन सेकंड लॉ. तो F is equal to dp by dt, right. So dp by dt we got the 0.8. What is the unit of force? Unit of force is Newton. So it will be 0.8 Newton. So this is the answer. This is the answer. So 0.8 is the Newton is the force. So just take a screenshot. Okay, I hope you have finished this screenshot. तो अभी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टाइप ऑफ फोर्सेस. ओके, types of forces. First of all, let us try to understand what mean by force. Force क्या है? It is a physical quantity or external agency. Force is an external agency due to which the body tends to move. Okay. Or body changes its position or tends to change the position, we call it force, or it is just push or pull, right. But there are some forces which are available in the nature of forces, right, and which are the real and pseudo force also, which are contact and non contact force. तो सबसे पहले हम देखेंगे what are the types of forces, उसके बाद हम देखेंगे कि वो कॉन्टैक्ट है, नॉन कॉन्टैक्ट है, और वेदर इट इज रियल फोर्स है, स्यूडो फोर्स है. ओके, तो हम आज जो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर है वो पहले देखेंगे. सो देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस. ओके, सो देयर आर 4 fundamental forces in nature. Okay, the most familiar force जो हमको पता है, जो हम यूजुअली यूज करते हैं, which was discovered by the Sir Isaac Newton,
राइट, पेड़ के नीचे बैठा था तो उसने एक फोर्स का डिस्कवरी किया है, राइट। हमको काफ़ी फैमिलियर है, छोटे छोटे बच्चों को भी मालूम रहता है, राइट। और वो फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से हम यहाँ पे खड़े रह पा रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, राइट, क्यों हवा में नहीं उड़ रहा हूँ, राइट, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहला फोर्स क्या है? फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। तो यहाँ पे हम 4 फोर्स के प्रॉपरली लिखेंगे यहाँ पे। दिस इज सेकेंड, थर्ड and this will be fourth. Okay, so let's write one by one fundamental force. तो पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, the fundamental in nature. We will discuss in detail about this. Second है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और थर्ड जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इट इज न्यूक्लियर फोर्स, और उसको सिंपली स्ट्रॉन्ग भी बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और वीक फोर्स, इट इज आल्सो न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। नाउ लेट अस डिस्कस दिस वन बाय वन, एक एक देखते हैं। तो पहला फोर्स हमारा आएगा, the first force will be the gravitational force. Gravitational force. This is most familiar force or very basic force, fundamental force, gravitational force, right? Now, what is this gravitational force? उसको पहले हम देखते हैं। उसका पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, so you will get a clear idea, right? See, I am having a ball, is rubber ball है। When I release this ball, right, from certain height, it come down. क्यों आया नीचे? Why it doesn't go up? ऊपर क्यों नहीं आया? या ऊपर फेंका तो वापस नीचे आ रहा है? Why it doesn't fly in the space? उस स्पेस में क्यों नहीं उड़ रहा है? Because something is there, right? Some force acting on this object, which always acts vertically downwards. वो हमेशा नीचे के साइड पे अट्रैक्ट होता है, right? So that force was discovered by the eminent scientist Sir Isaac Newton. तो उसने क्या दिया? यहाँ पे अर्थ है, this is the surface of the earth. Okay, now let's have the radius of the earth. ये अर्थ का रेडियस मैंने r लिया, okay, and if the person is standing हो रही है, यहाँ पे आदमी खड़ा है, उसका जो हाइट है, that height is very less comparable to the radius of the earth, right? तो हम उसका डिस्टेंस कहाँ से लेंगे? सरफेस से ही लेंगे, या विल टेक द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, नाउ सो दिस पर्सन इज ऑलवेज बाइंड और बाउंड टू द अर्थ सरफेस। ओके, नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप और ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम सर्टेन हाइट, यहाँ से ऑब्जेक्ट फेंका तो नीचे आ रहा है, so it is coming down because of some force is exerted by the earth. This is earth on an object in the vertically downward direction, and that force is known as gravitational force. Okay, this gravitational force is also called as a weight. कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर वेट है, मान लो if I am holding this ball in my hand, right, मुझे हेवी लग रहा है। क्यों हेवी लग रहा है? क्योंकि whatever the force exerted by earth on this ball, that force always acts vertically downward, and we call it weight. So weight is defined as the gravitational force exerted by earth on an object is called as weight. Okay, so how this gravitational force discovered by the Newton, right? तो उसका एक लॉ है, and that law is Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation. तो हम उसका पहले स्टेटमेंट देखेंगे। आपको स्पेशल टॉपिक भी है ग्रेविटेशन का, उसमें भी पढ़ेंगे और इसमें भी आप देख लो। ओके, तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या स्टेट करता है? इफ द टू पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर, सपोज इफ आई एम टेकिंग दिस पार्टिकल एंड अनदर पार्टिकल, दो पार्टिकल लिया, हैविंग अ मासेस m1, इसका मास लिया मैंने m1, इसका मास लिया मैंने m2, एंड both the masses are separated by a distance small r. दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r.
Okay, so these two particle of matter attract every other particle with a force. यहाँ पे सिर्फ attract होगा, no repulsion. Okay, तो यहाँ पे मैं उसको इधर दिखाऊंगा दोनों. So there is attraction, attractive force. So जो भी force होगा, that force will be the attractive force. Then F is directly proportional to the product of their masses. दोनों bodies का mass. Product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. And this force, ये जो force है, this force acts along the line joining to the center of these two particles, two bodies. यहाँ पे जो हम बॉडी ले रहे, रिजिड बॉडी ले रहे, तो दैट रिजिड बॉडी, मान लो ये दो बॉल लिया हमने, दोनों बॉल का जो सेंटर लेना पड़ेगा आपको, जो भी डिस्टेंस होगा, दैट डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस टू बॉल्स. ओके, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दैट इज r, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, राइट. सो बोथ दिस बॉडीज अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर. बाद में मैं बोलूंगा कि क्यों नहीं अट्रैक्ट करें, बट यू हैव टू अज्यूम दैट. ओके, जब वो इसका डेरिवेशन हम कंप्लीट करेंगे तब पता चलेगा कि व्हाई दिस टू बॉल डोंट अट्रैक्ट, बट दिस बॉल व्हेन आई रिलीज इट विल गो डाउन. ओके, हम उसको देखेंगे बाद में, पहले हम भाई लॉ को स्टेट कर लेते हैं. तो देखो बच्चों यहाँ पे every particle of a matter attracts every other particle with a force F is directly proportional product of their masses, product मतलब multiplication of their masses, and inversely proportional to the square of the distance between them. Full stop. And then this force acts along the line joining to both the matter, both the particles. Is that clear? So let's write this. हम इसको लिखते हैं. So F, अभी देखो यहाँ पे फिजिक्स में जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को निकालना है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम निकालना है, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को निकालने के बाद we have to take some physical constant, कुछ तो कांस्टेंट लेना पड़ता है. हमेशा याद रखना, जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी निकालते हो फिजिक्स में, तो we have to take some constant, and that constant will be F is equal to capital G into M1 M2 upon R square. Okay, so here what is G? Where capital G is gravitation, universal gravitational constant. It is universal gravitational constant. Okay, whose value, इसका जो वैल्यू है, जो हेनरी कैवेंडिश ने डिस्कवर किया था, जो वैल्यू है, राइट. सो दैट वैल्यू विल बी द 6.67 into 10 raised to minus 11 SI unit. तो भी SI unit होगा, वो हम डिराइव करेंगे उसका SI unit क्या होगा, राइट. सो हियर G is equal to, अभी देखो यहाँ पे G, make G as a subject. यहाँ पे G को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है. ओके, सो व्हेन वी आर मेकिंग G एज अ सब्जेक्ट, तो दिस R स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो इट विल बी F into R स्क्वायर डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस M1 M2. नाउ व्हाट कुड बी द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हियर? ऐसा यूनिट यहाँ पे लिखा है, लेकिन वो यूनिट बनाना पड़ेगा, यूनिट लाना पड़ेगा कि क्या होगा, राइट, हमको लाना पड़ेगा. तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, सॉरी, यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन, इनटू व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर, दैट विल बी मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाय व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम स्क्वायर. So the SI unit of G will be Newton meter square per kg square. Okay. Now once again let me revise the Newton law of gravitation. These are the two particles of a matter. Okay. Attract one particle, every particle attract every other particle with a force F is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them, and this force acts along the line joining to both the particle. Okay, so this is then G is the gravity. Why this why this so called universal gravitational constant? क्योंकि ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट एवरीवेयर. आप कहीं पे भी जाओ, जुपिटर पे जाओ, मार्स पे जाओ, मर्क्यूरी पे जाओ, अर्थ पे जाओ, मून पे जाओ, वेयर एवर यू आर गोइंग,
the value of g will remains constant. Understood? Okay. अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे let us log to this, इसके साथ अभी हमको कंपेयर करना है. तो how can we define the weight? So weight of the body, weight is equal to gravitational force. Weight is the gravitational force exerted by earth on an object, right? So let's write the expression F is equal to, अभी इसके साथ मैच करना है हमको, G is equal to m1 m2, right? So capital G into, अभी यहाँ पे दो masses है, मान लो the mass of the earth capital M, यहाँ पे mass of the earth कितना है capital M, और यहाँ पे जो mass of the body मैंने small m लिया, which is released from the certain height. Okay, तो यहाँ पे mass of the earth will be capital M into mass of the body small m divide by जो distance होगा यहाँ पे, right? ये जो distance है, this distance is comparatively very less as compared to the radius. Okay, तो हम जो भी ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं यहाँ से, जो भी ऑब्जेक्ट को हमने रिलीज किया, तो ये डिस्टेंस हम निग्लिजिबल कहेंगे और we will take the radius of the earth because it very close to earth surface. तो यहाँ पे देखो बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा कैपिटल R square, that will be the radius of the earth. तो यहाँ पे कैपिटल M क्या है, मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, which is equal to, अभी हमारा न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, the Newton second law state the F is equal to mass into acceleration. लेकिन when the body released from certain height, what type of acceleration it possesses? Definitely it is the acceleration due to gravity. तो यहाँ पे जो भी small a आएगा that will be mg. तो यहाँ पे क्या आएगा, the weight of the body m into small g. We are equating this gravitational force और यहाँ पे weight of the body mg. यहाँ पे mg कहाँ से आया? This is the weight. But what is this weight? This weight is nothing but a gravitational force. समझ में आ रहा है? Okay. Now अभी दोनों को इक्वेट किया हमने यहाँ पे, तो ये स्मॉल m कट हो जाएगा, तो स्मॉल g is equal to कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, जो मास है, मास ऑफ द अर्थ, इट इज द मास ऑफ अर्थ, दैट अर्थ इज स्टैंडर्ड वैल्यू, तो आपको याद रखनी, एंड दैट इज 6 into 10⁻24 किलोग्राम. दिस इज द मास ऑफ द अर्थ. और मास ऑफ द सन कितना है, 10�6 टाइम ज़्यादा है, 10�30 आएगा वो. मास ऑफ द सन इज 10�30 और मून का मास उससे कम है. एंड कैपिटल R इज रेडियस ऑफ अर्थ. रेडियस ऑफ अर्थ है बच्चों 6400 किलोमीटर. कितना है? 6400 किलोमीटर. लेकिन किलोमीटर क्या है, किलोमीटर इज नाइदर SI, ओके, नॉर CGS यूनिट, तो उसको SI में कन्वर्ट करेंगे. 6.4 into 10⁶ मीटर. सो दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ इन मीटर, 6.4 into 10⁶ मीटर. तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, नाउ लेट अस फाइंड वैल्यू ऑफ स्मॉल g. स्मॉल g का वैल्यू फाइंड करेंगे. स्मॉल g इज इक्वल टू gm अपॉन R स्क्वायर. g का वैल्यू कितना है, 6.67 into 10⁻⁻11 into मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 10⁻24 divide by the radius 6.4 into 10⁶ होल ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, इसको पूरा आप कैलकुलेटर से सॉल्व करो या लॉग टेबल से सॉल्व करो. पूरा सॉल्व करने के बाद you will get 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जो हमने अभी आज तक ये g का वैल्यू यूज किया है, अज्यूम करते हैं कि g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो कहाँ से आया, तो दैट वैल्यू हैज कम फ्रॉम दिस फॉर्मूला. गॉट इट एवरीवन? तो यू हैव टू टेक दिस एक्सप्रेशन, राइट. अभी हमको देखना है कि व्हाई दिस टू बॉडीज. ओके, ये दोनों बॉल बहुत स्मॉल है, छोटे साइज है. इसका वजन कितना होगा, 100 ग्राम होगा. इसका कितना होगा, 200 ग्राम होगा. डबल होगा मान लो.
राइट? तो ये दूसरे को एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करे? They why these two ball don't attract, but when I release it come down. When I release this small, it come down. वो नीचे आ रहा है, ऐसा क्यों? Because यहाँ पे जो दो बॉडीज हम लेने वाले हैं, यहाँ पे दो पार्टिकल लिए very small mass. Okay, but when we are taking the mass of the earth, when we are comparing with mass of the earth, यहाँ पे earth ले रहा हूँ मैं. Earth is a celestial body. Okay, astronomical body. So here the R, this is mass is 6 into 10 raised to 24 kg, and यहाँ पे जो radius है 6400 kilometer is the radius of Earth, right? And when we are taking the any body, चाहे वो 50 kg हो, 100 kg हो, 300 kg हो, right? कोई भी ले लो, and just release, तो वो नीचे आएगी, it will go down. So these two bodies will have the force of attraction. They will have attraction. Okay. But why these two? Suppose यहाँ मैंने दो sumo लिए, wrestler sumo लिए, जो wrestling कर रहे हैं, right? These are the sumo. Sumo. ये भी sumo है. Sumo 2. ये sumo 2 है. ये sumo 1 है. Right? इसका mass है 300 kg. इसका mass है 300 kg. दोनों का मास 300 किलो, बट स्टिल एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय 0.5 मीटर, आधा मीटर से रेसलिंग कर रहे, ओके, और खड़े से आधे मीटर में खड़े. व्हाई डोंट दे अट्रैक्ट? क्योंकि दोनों का मास कंपेरेटिव टू मास ऑफ द अर्थ इज वेरी लेस. और वो क्यों है? व्हाई डू वी आर गेटिंग वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? बिकॉज ये जो वैल्यू ऑफ जी है, यहाँ पे मेन फैक्टर क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. The gravitational constant का value very small, 10 is to minus 11. See, this g can be written as g is equal to 0.00045678910. Yeah. Okay. तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू बहुत स्मॉल हो गई. Because of this value of g, whatever the force we will get, that force is very small. Right? तो अभी देखते हैं यहाँ पे दोनों के बीच में फोर्स निकालते हैं. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू सुमो रेसलर whose mass is 300 kg, right? So 6.67 into 10 raised to minus 11 into 300 डिवाइड बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना? 0.5 मीटर स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करो. तो सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा, दैट आंसर विल बी वेरी लेस. ओके, वो आंसर बहुत कम होगा. इतना कम होगा कि पूछो मत. दैट आंसर विल बी वेरी स्मॉल. तो उसका आंसर है 224 इंटू 10 raised to minus 6 न्यूटन, which is 24 माइक्रोन्यूटन में आ रहा है, राइट? और वो सुमो का इसका वेट कितना है? 300 इंटू 10. अगर जी से मल्टीप्लाई किया तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 3000 न्यूटन. वेट से कम आ रहा है, तो ये 24 माइक्रो न्यूटन, वेरी स्मॉल. दैट्स व्हाई दिस टू सुमो डोंट अट्रैक्ट ईच अदर. आप इसके साथ भी मैच कर सकते हैं ये दोनों. व्हाई दिस टू बॉल डोंट अट्रैक्ट? इसका मास ले लो, इसका मास ले लो किलोग्राम में, और पुट वैल्यूज इन द फॉर्मूला, राइट? सो यहाँ पे रीजन क्या है? क्वेश्चन आ सकता है, theoretical question आ सकते हैं एग्जाम में, कि why the 1 kg mass of two bodies don't attract each other, but the same 1 kg mass when it is dropped from certain height, okay, on the earth surface, it is attracted, because जो force होगा दोनों के बीच में वो ज़्यादा होगा. क्यों? Because यहाँ पे the mass of the earth is very huge, okay, greater mass of the earth का mass ज़्यादा है, because it is celestial body. The same thing happen with the Jupiter, मर्क्यूरी और कोई भी प्लैनेट लो, वही प्लैनेट पे आप जाओगे तो वो भी वहाँ पे भी आपको ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा, राइट? सो देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून एंड अर्थ, दे अट्रैक्ट. देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अदर प्लैनेट्स. दैट्स व्हाई दे आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये क्या काम करता है? व्हाई द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट और व्हाई द अर्थ इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट? बिकॉज कोई भी चीज़ अगर गोल घूमनी है, हमको पता है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है कि गोल घूमने के लिए हमको कौन से फोर्स की जरूरत होती है? सेंट्रीपेटल फोर्स. और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है,
this gravitational force act as a centripetal force so that the any planet can revolve around the sun in a circular orbit, or because of the gravitational force the moon can revolve around the sun, around the earth in a circular orbit because of the gravitational force. Is that clear? Because it acts as a centripetal force. Okay, तो अभी हम देखेंगे what are the characteristic of the gravitational force, right? What are the characteristic of the gravitational force? तो सबसे पहले एक ग्राम उसका ये ले लेते हैं, कैरेक्टर्स लेते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो. So characteristic of gravitational force. Many times this question is asked. Okay, state the characteristic, any 4 characteristic of gravitational force. Each characteristic carry half mark in exam, right? या फिर कभी-कभी क्या होता है, difference between पूछा जाता है, distinguish between or difference between gravitational force and electromagnetic force. यहाँ पे हम देखेंगे characteristics of gravitational force. Okay. तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज, क्या होगा कि इफ आई रिलीज दिस ऑब्जेक्ट बॉल फ्रॉम दिस सर्टेन हाइट, इट कम डाउन. So why it come down? Because gravitational force is attractive in nature, no repulsive. Gravitational force is not repulsive, it is only attractive. Okay, so it is attractive in nature. Second क्या है, it acts along the line joining to the center of mass of a body का center of mass लेने का, वहां पे वो दोनों को act होता है, right? And this law obeys gravitational force. This force obeys inverse square law. Inverse square law in the sense, हमको हमारे पास फॉर्मूला है F is equal to capital G into mass of the one body into mass of the another body divided by r square. Okay, तो ये दो फोर्सेस है, दो बॉडी है, M1, this is M2 and both are separated by distance r, right? तो जैसे जैसे दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कम होगा. इफ दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, जितना पास में रहेंगे उतना ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा. तो इट ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ. यहाँ पे मास अगर कांस्टेंट लिया एंड विल जस्ट चेंज द डिस्टेंस, दोनों को अगर चेंज है, मान लो यहाँ पे मास कांस्टेंट दोनों का, m1 है m2 है, राइट? अभी इफ आई एम टेकिंग वेरी क्लोज तो क्या होगा, फोर्स ज़्यादा होगा. इफ आई एम सेपरेटिंग टू मच, दूर दूर लेके जा रहा हूँ, तो क्या होगा, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल रिड्यूस, विल बी लेस. एंड वो कितना कम होगा, दैट विल बी रिड्यूस इन द स्क्वायर. ओके, इनवर्स स्क्वायर. सो F is directly proportional to 1 upon r square where m1 m2 are constant. Capital G is also constant. This is called as the universal constant. तो यहाँ पे अगर मास मैंने कांस्टेंट लिया तो the force of attraction, gravitational force of attraction will vary inversely proportional to each other. Okay. थर्ड पॉइंट जो है, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक जो है, अभी यहाँ पे इफ यू आर टेकिंग दिस, अभी अर्थ और ये बॉडी बॉल दोनों के बीच में मीडियम क्या है, हवा है. अगर मान लो पानी के अंदर ले लो या कोई भी मीडियम ले लो तो कोई असर नहीं पड़ेगा, तो लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होने ही वाला है. ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट, मान लो आपने कंटेनर में पानी दिया, राइट? तो मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो भी वाटर मॉलिक्यूल है, दैट वाटर मॉलिक्यूल, वाटर ड्रॉपलेट इनसाइड द कंटेनर, दैट विल ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स. वहाँ पे मीडियम का कोई असर नहीं पड़ेगा. तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम. सो
gravitational force is independent of intervening medium वो डिपेंड नहीं करता है चाहे कुछ भी मीडियम हो, राइट. And very important, this force is a long range force. This is GF, gravitational force is long range force. अभी देखो सन अर्थ से कितने डिस्टेंस पे 150 मिलियन किलोमीटर. 150 मिलियन किलोमीटर. Okay, let us calculate how much it is. यहाँ पे हमारी अर्थ है और यहाँ पे सन है. दिस इज अर्थ, राइट. दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 150 मिलियन किलोमीटर. मतलब 150 इंटू 10⁶. मिलियन मतलब 10⁶. किलोमीटर को मीटर में करो इंटू 10�3 मीटर. So this is 150 into 10⁹ मीटर ना डिस्टेंस है. फिर भी वो it experience the gravitational force. Earth experience the gravitational force from the sun. Okay, so that can revolve in a circular orbit around the sun. Now the distance between moon and earth 3.84 into 10⁶ किलोमीटर. वो भी काफ़ी ज़्यादा है. सॉरी 10⁵ होगा, 10⁵. right? तो still but it exists. मतलब इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स. जितना ज़्यादा डिस्टेंस दूर होगा तो भी वो असर करेगा. पास में तो करेगा, लेकिन ज़्यादा है तो भी वो इट विल वर्क, राइट. नाउ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, राइट. सो दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका जो ये लॉन्ग रेंज फोर्स का इसका जो ये इंटेंसिटी है दैट इज वेरी स्मॉल बिकॉज ऑफ द gravitational constant whose strength is very less, very weak force. Gravitational force is very weak than other forces. Okay, it is weaker. GF is the most weaker force or weakest force. Gravitational force is weakest force among the four fundamental forces. Among four fundamental forces. मतलब it is weaker than electromagnetic force, weaker than strong force, weaker than weak nuclear force. Understand? तो यहाँ पे GF जो है gravitational force is weaker than electromagnetic force, weaker than weak force and less than the ये weak force इससे इलेक्ट्रोमैग्नेट से भी weak है. तो यहाँ पे weak force आएगा, weak less than, यहाँ पे आएगा electromagnetic force less than, it is strong force. So this is what the sequence. Gravitational force is very less compared to weak force, very less than the electromagnetic force, very less than strong force. This is what the sequential order. So in this way we have finished the characteristic of the 6 characteristics हो गए, बहुत है. अगर आपको कुछ और ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो. So take a screenshot. Okay, second type of force जो है, that second type of force is the electromagnetic force. It is electromagnetic force. Second type of force is electromagnetic force. Electromagnetic.
एक्चुअली एरिस्टोटल के टाइम पे ये सब नहीं था, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, वो पहले अलग अलग था, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक पता ही था। उसके बाद फिर गैलीलियो आया, गैलीलियो का न्यूटन आया, न्यूटन के बाद फिर 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, ओके, 19th सेंचुरी में जो मैक्सवेल थे, जेसी मैक्सवेल, ओके, और इलेक्ट्रिसिटी का जो फादर था, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज माइकल फैराडे। तो ये दोनों ने क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया। बिफोर मैक्सवेल एंड बिफोर फैराडे, these forces, the electric force due to electric field and force due to magnetic field was separately study किया जाता है। लेकिन ये दो बंदे ने क्या किया, दोनों ने साथ में पढ़ाई किया और देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मिलके जो भी फोर्स बनेगा, दैट विल बी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, So, and this force is the attractive as well as repulsive force. It is attractive as well as repulsive force. जब भी इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ, राइट, बेंजामिन फ्रैंकलिन के जमाने से, राइट, तो क्या हुआ कि टू लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो हम पढ़ने वाला आगे है वो टॉपिक में 11th के सिलेबस में। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो तब था वो इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट विल बी इलेक्ट्रिक फोर्स। एंड दो मैग्नेट लिया, एक मैग्नेट साउथ पोल और नॉर्थ पोल, तो बोथ द मैग्नेट वेर अट्रैक्ट ईच अदर, राइट, तो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर and the like pole repel each other, so that was the magnetic force. So there is so this electromagnetic force, combination of electric and magnetic, दोनों को combine कर दिया, which is attractive as well as repulsive, okay, and this is due to the actual interaction of the charged particles. यहाँ पे body एक तो चार्ज होगी और एक अनचार्ज होगी, तो भी वो करेगा, right, so electrically charged particle. So this electromagnetic force exists if there are charged bodies or charged particles, okay, and if they are like charges, there will be repulsion. If they are unlike charges, there will be attraction. So let's write the proper definition of this electromagnetic force. It is an attractive or repulsive force between electrically charged particles, okay. And earlier this, I told you that earlier it was electric and magnetic forces were independent, but after the demonstration by the Michael Faraday and James J.C. Maxwell, they decided that they have made the electromagnetism theory, and since that force combinedly called as electromagnetic force, and this force is stronger than gravitational force, okay. तो ये जो force है, EM force is stronger than electromagnetic force is stronger than gravitational force, okay. Our life is totally governed by this electromagnetic force. देखो क्या क्या है, जैसे कि force of friction होता है, two bodies are in contact, okay. जब दो बॉडी कांटेक्ट में रहता है तो यहाँ पे अभी ये क्यों नहीं स्लाइड हो रहा है, बिकॉज इट इज फ्रिक्शन, ओके, या फिर ऐसे टेढ़ा किया मैंने तो भी गिर नहीं रहा है, तो भी गिरने थे, सी आई मेक इट टिल्टेड, right, why these dust are not falling down, why it is stick to the ball, because just 1 minute. So why this stick to this, okay, see वो क्यों टिल्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो स्लाइड नहीं हो रहा है, राइट, तो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, सो द फ्रिक्शनल फोर्स, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, देन नॉर्मल रिएक्शन, राइट, जैसा अभी यहाँ पे ये बॉडी है, इसके यहाँ पे मैं रखा, राइट, तो
वेट ऑफ द बॉल जो है दैट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, और उसी का जो डस्टर है वो भी बॉल पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो द नॉर्मल रिएक्शन ऊपर के डायरेक्शन पे, और वेट ऑफ द बॉल एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो ये जो है नॉर्मल रिएक्शन जो है दैट इज आल्सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन नेक्स्ट आएगा, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। तीसरा एग्जांपल आएगा टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके, अभी देखो यहाँ पे आई हैव अ पेंडुलम, तो ये जो पेंडुलम है जो स्ट्रिंग है इट इज सस्पेंडेड टू दिस, तो व्हाई दिस स्ट्रिंग नॉट स्ट्रिंग, ऐसे क्यों नहीं है, व्हाई इट इज स्टाउट, बिकॉज ऑफ द टेंशन। ओके, और वो टेंशन क्या है, यहाँ पे वेट ऑफ द पेंडुलम एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, और वो उसको काउंटर बैलेंस करने के यहाँ पे टेंशन आ गया है। तो व्हाट इज द टेंशन इन द स्प्रिंग और टेंशन इन द स्प्रिंग, so tension in string that is also the electromagnetic force, tension in the string, tension in the string। collision forces, जब दो बॉडी कोलाइड हो रहे हैं, when these two bodies okay rolling on the horizontal surface so they collide each other, तो कोलाइड हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, पार्टिकल यहाँ पे एक दूसरे को घिस रहे हैं, ओके फ्रिक्शन हो रहा है, तो during the collision also so that is the electromagnetic force, and all these are the real forces, remember we will study in next topic real and pseudo force, so ये real forces है, right? So collision forces, collision forces, collision forces, and दूसरा इलास्टिक फोर्स, मान लो मैंने कोई रबर बैंड लिया, राइट, और रबर बैंड को ऐसे स्ट्रेच किया, तो जो भी होगा दैट इज आल्सो इलास्टिक फोर्स। सो इलास्टिक फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विच इज रियल फोर्स। ओके, एंड पानी के अंदर या हनी लिया आपने, हनी के अंदर एक कोई भी मेटालिक बॉल डालो, कोई भी पेबल डाल दो, तो वो जो पेबल है दैट पेबल विल गो स्लो डाउन, पानी के अंदर डालो तो एकदम फटक से गिरेगा नहीं, जैसे देखो यहाँ पे ये बॉल को मैंने डाला है डायरेक्ट आ गया, लेकिन यही बॉल को अगर पानी के अंदर डालोगे तो क्या होगा, पानी उसको अपोज करेगा, सो दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, फ्रिक्शन इन लिक्विड, फ्रिक्शन इन लिक्विड, और वी कॉल इट विस्कोसिटी, विस्कोसिटी हम जब टॉपिक हमारा आएगा तो हम पढ़ेंगे, राइट। तो विस्कोसिटी क्या है, इट इज द फ्रिक्शन इन लिक्विड, राइट, और ये क्या होगा, फ्रिक्शन इन सॉलिड, यहाँ पे फ्रिक्शन इन सॉलिड है, ये स्टिक हो रहा है, राइट। तो जब भी कोई भी बॉडी पानी के अंदर जा रही है तो इट विल गो स्लोली स्लोली बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन इन लिक्विड, वी कॉल इट विस्कोसिटी। सो फ्रिक्शन इन लिक्विड, फ्रिक्शन इन लिक्विड, that is viscosity, okay, viscosity। Then under the action of these forces there is a deformation of object, object deform भी हो सकते हैं, that changes intramolecular distance, कोई भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है that molecule will change their distance, okay, and that body get deformed, the deformation of body is due to the intramolecular distance between the two particle changes, two molecule changes, right। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है we will study the characteristic of electromagnetic force in the next class. Till that, tata, bye bye, have a good day.